راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر، جوشوا کا سلام۔ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں۔ میں آپ سبھی کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ جناب والا، ہم جو والدین ہیں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح بچے بھی والدین سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور پیار اور محبت ہی کی وجہ سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھار خاندان کے کسی بھی فرد سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم سارے کے سارے اس پر اتنا برس پڑتے ہیں کہ ہم رشتوں کے اس تقدس کو بھول ہی جاتے ہیں۔ میں یہاں پر والدین کے لیے بھی ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں، نوجوان نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ نادانی یا غلطی انسان کے خون میں ہے، تو یہ بھید جو ہے وہ ہم سب پر ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے کہ ہم سبھی انسان ہیں، ہمیں بچوں کی غلطیاں معاف کرنا آنا چاہیے۔ بڑی دفعہ بچے جو ہیں وہ ضد کر جاتے ہیں، اس ضد کے حوالے سے بھی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس ضد کا مقابلہ کرنے کے بجائے بچوں کو بڑے پیار سے ہمیں سمجھانا ہے، اور کبھی بھی ہمیں رشتے کو نہیں توڑنا۔ ہم بہت سی خبریں اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ جی فلاں نے اپنے بچے کو آگ کر دیا، اس نے رشتہ ناتا توڑ دیا۔ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جی اس نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ خدا نے آپ کو بڑی پیاری نعمت دی ہے، خوبصورت نعمت دی ہے، اسے سنبھال کر رکھیے۔ ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں جب ہم اس کے حضور آتے ہیں، خدا ہماری خطاؤں کو بخش دیتا ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کی خطاؤں کو بخش دیں، دل میں کبھی ان کے لیے ہم غصہ نہ رکھیں، محبت اور شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، پس جب تو خرائط کرے تو اپنے آگے نرسنگانہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تو خرائط کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خرائط پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے، اسی کے ساتھ آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے حمدیہ گیت۔ اس کی ہے جس نے یہ عطا کی ہے، اس کی ہے جس نے یہ عطا کی ہے۔ روح پیاسی میری خدا کی ہے، اس کی ہے جس نے یہ عطا کی ہے۔ روح پیاسی میری خدا کی ہے، اس کی ہے جس نے یہ عطا کی ہے۔ نہ مانے کسی کی دیوانہ، شمع سے دل لگائے پروانہ، کچھ نہ مانے کسی کی دیوانہ، بہتے پانی کو کون روکے، مل جائے گا وہ ساتھ
सागर से ये कशिश सब में ही बला की है, उसकी है जिसने ये अता की है। उसकी तरफ ही खिंचाव होता है, जिसको जिससे लगाव होता है उसकी तरफ ही खिंचाव होता है। फितरत कभी भी बदलती नहीं, ये चाल कोई भी चलती सच्चाई एक सदा की है। हमदिया गीत हमने सुन लिया जनाब। अभी मैं शामिल करूंगा हस्बे मामूल आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। सबसे पहला मैसेज जो आज है वो है असद मुराद साहिब का, जिनका ताल्लुक जिला केच से है। लिखते हैं, जोशुआ साहिब, आज राह जिंदगी प्रोग्राम सुना, आगाज कलाम मुकद्दस से हुआ, हमदिया गीत से हुआ, सुनकर अच्छा लगा। फिर आपने कहा कि सामईन के खुतूत और मैसेजेस शामिल थे, वो भी सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब। अमजद महमूद जख्मी साहिब लिखते हैं, स्वीट भैया जोशुआ साहिब, खुलूस भरा सलाम। शुक्रिया जनाब, आपको भी हमारा सलाम। लिखते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी को बड़े मुनफरद अंदाज में पेश किया गया। वाकई टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया एक से बढ़कर एक है। और फिर आपने कहा कि दुबई और सऊदी अरब ममालिक इल्म, फन और टेक्नोलॉजी में हैरानकुन तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान भी जदीद तरक्की की मनाजिल तय करता नजर आए, आमीन। फिर आपने कहा, तिलावत कलाम पाक ने बहुत मुतासिर किया। शुक्रिया जनाब। वफा अली बरोही साहब लिखते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी के खूबसूरत गुलदस्ते में शामिल होकर जो दिली खुशी मिलती है वो अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है। यूं तो प्रोग्राम के सारे सिलसिले एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन चिरागे राह सिलसिला बहुत खूबसूरत है। इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाकयात को बड़े अहसन तरीके से पेश किया जा रहा है। शुक्रिया जनाब। जफर इकबाल सियालकोट से लिखते हैं, आदिल मुश्ताक की आवाज सुनकर दिल को करार आ गया। क्या बात है जनाब, आदिल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको और भी अच्छा लगता है। शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है प्यारे भाई जफर इकबाल। महर हसन अली एडवोकेट हैं, चंगनावाला चिन्योट में। लिखते हैं, प्यार भरा सलाम। लिखते हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम राह जिंदगी आदिल मुश्ताक की मेजबानी में सुना, हमदिया गीत सुना, ड्रामा सराइकी सुना, बहुत ही मजे का सेगमेंट था। गीत खिजां की शाम सुना, बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब। अफकार गिल, आसिफ गिल और काशिफ गिल, चक नंबर 153 भरो की चक झुमरा, लिखते हैं कि हमारी तरफ से राह जिंदगी की पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम कबूल हो। प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आमीन। फिर आपने कहा कि आज का गीत भी हमारे लिए बहुत बाबरकत था, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब। अली रजा बहावल नगर से लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, प्यारी बाजी की आवाज में प्रोग्राम सुना। आगाज में बाजी ने बताया कि वो कुछ दिन पहले एक मरीज की तीमारदारी के लिए अस्पताल गईं। ये वाकया सुना, अच्छा लगा। प्रोग्राम में तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत, तेरियां सिफतां दे गौणे गीत, करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत, करना शुक्र खुदा, सुनकर बहुत राहत मिली और बरकतें मिली। शुक्रिया प्यारे भाई अली रजा। हम सभी दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जो बड़ी बाकायदगी से हमें लिखते हैं। आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि खुतूत लाजमी लिखा कीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप जब अपने हाथ से लिखकर हमें भेजते हैं, हमें यूं लगता है कि
आप खुद चलकर यहाँ पर आ गए हैं। तो जनाब पता नोट फरमा लीजिए, ये उन दोस्तों के लिए है जिन दोस्तों के पास अभी तक प्रोग्राम का पता मौजूद नहीं है। आप हमें खत लिखेंगे हमारे इस पते पे, प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। आप हमें कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे हमारे इस नंबर पे 0305 3377 310। फिर से बोल रहा हूं 0305 3377 310। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद के नाम से, और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामईन, आज हम कुदरत के करिश्मे में जानेंगे फूल गोभी और बंद गोभी के हैरत अंगेज फवाइद के बारे में। बंद गोभी को गरीब का तबीब भी कहा जाता है। कदीम आयरलैंड के लोग इसके पत्तों को गले की सोजिश और दर्द के खात्मे के लिए इस्तेमाल में लाते थे, जबकि नज़ला और जुकाम की सूरत में इसका सूप भी बहुत फायदेमंद साबित होता है और इसे छाती के कैंसर का कुदरती इलाज भी माना जाता है। फ्रांस के रहने वाले लोग बंद गोभी को गोश्त के साथ इस्तेमाल करते थे। रूस में इसका सूप बहुत मकबूल है और जर्मनी के लोग बंद गोभी को सिरके के साथ खाना पसंद करते हैं। बर्तानिया में इसे खुश्क मेवाजात और सेब के साथ मिलाकर खाया जाता है। फूल गोभी मौसम सरमा की मशहूर सब्जी है जिसका जायका फीका होता है। अपनी तासीर के लिहाज से ये सर्द खुश्क होती है। इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि गोभी के सेहत बख्श असरात से दुगना फायदा हासिल करने के लिए हमें इसके डंठल और पत्तों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इसको बतौर सब्जी पकाने की बात की जाए तो इसके बारे में कहा जाता है कि गोभी को तेल और घी में पकाने की बजाय अगर काट कर कच्ची हालत में भाप पर नरम करके या फिर पानी में उबालकर खाया जाए तो इस सूरत में इसके कुदरती अज्जा महफूज रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर इसे आलू के साथ पकाने का रुझान है, जो कि मुनासिब नहीं माना जाता, क्योंकि इस सूरत में बाज लोगों को बदहजमी और अफारे की शिकायत भी हो सकती है। सामईन, अगर आप गोभी को बतौर सलाद इस्तेमाल में लाना चाहें तो आप इसमें जैतून के तेल की थोड़ी सी मिकदार शामिल कर सकते हैं, जिससे इसके सलाद की अफादियत और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ गोभी को सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाली सब्जी माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गोभी के बारे में मुकम्मल मालूमात का ना होना है। मैदे की तजाबियत के दौरान अगर इस सब्जी को खाया जाए तो निजाम इंहजाम पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा टीबी की बीमारी और नज़ला और जुकाम के दौरान भी गोभी का इस्तेमाल फायदा बख्श नहीं साबित होता। लेकिन इसके बरक्स फूल गोभी के फवाइद इस कदर ज्यादा है कि अगर इनसे वाकफियत हासिल हो जाए तो हम इस सब्जी को खाने पर मजबूर हो जाएं। ये तरकारी इंतहाई सेहत बख्श और गिज़ाई लिहाज से निहायत मुतासिर कुन है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम पाई जाती हैं, जबकि विटामिन में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है। इसमें विटामिन के अलावा वो तमाम मादनियात भी पाई जाती हैं जिनकी इंसान को इंतहाई ज्यादा जरूरत होती है। फूल गोभी में फास्फोरस, विटामिन B और विटामिन C भी पाए जाते हैं, जो कि मसूड़ों समेत दांतों की दीगर बीमारियों के लिए बहुत मुफीद हैं। ये जिस्म में पैदा होने वाली बलगम को रोकती है। ये खून को साफ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में शुमार की जाती है, जो कि फोड़ों और फिंसियों से भी राहत बख्शती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खुलियों को नुकसान पहुंचाने वाले जर्रात और सोजिश के अलावा फेफड़ों, कोलोन, छाती और प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ हमारे जिस्म में कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसे सबसे कम कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी माना जाता है, जिसे मुख्तलिफ दालों और फलियों के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सामईन, फूल गोभी और बंद गोभी में सिर्फ ज़ाहरी साख्त एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन अगर इसके तिब्बी फवाइद और खुसूसियात की बात की जाए तो वो तकरीबन एक जैसी हैं। बंद गोभी डाइटिंग करने वाले अफराद के लिए भी निहायत फायदेमंद है। ये बगैर कोलेस्ट्रॉल और कम कैलोरीज के सबब से वजन घटाने में मदद फराहम करती है, क्योंकि इसमें चिकनाई की मिकदार इंतहाई कम होती है। ये अल्सर, जोड़ों के दर्द
यरकान, जिल्द के अमराज और चिकनाई के सबब से चेहरों पर मौजूद दानों को खत्म करती है और आंखों की रोशनी कम होने की सूरत में इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें विटामिन और दीगर बहुत से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो ज़हनी सेहत और इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। ये हमारे असाबी निजाम को थकने और तबाह होने से बचाने के अलावा अल्जाइमर के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है और बंद गोभी में मौजूद विटामिन सी और सल्फर यूरिक एसिड से भी महफूज रखता है। इसमें मौजूद ये सल्फर बालों, नाखूनों और जिल्द की सेहत के लिए भी निहायत मुफीद करार दिया जाता है, जबकि ब्लड प्रेशर को मुतवाजिन रखने के लिए बंद गोभी को बतौर सलाद खाने का मशवरा दिया जाता है और इसमें बड़ी मिकदार में मौजूद फाइबर निजाम हाजमा को सेहतमंद बनाता है और कब्ज को दूर करता है। गर्ज ये कि हर नबातात जिसे खुदा ताला ने बनाया है वो हमारे लिए फायदेमंद है, बशर्ते कि हम हिकमत का इस्तेमाल करते हुए उनकी अफादियत को जाने और उनसे इस्तेफादा करें। तो बड़ी मजेदार ये सब्जी बनती है, खासतौर पे गोभी के पराठे क्या कमाल होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, नदीम साहिब से गुजारिश करेंगे कि एक अच्छा सा गाना हमारे लिए प्ले कर दें। खुशबू बनके
जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं। तुम जो कहो तुमको मर के मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। गीत हमने सुन लिया जनाबे वाला, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि वालिदैन के अंदर और बड़े बहन भाइयों के अंदर छोटों को मुआफ करने वाला दिल होना चाहिए। बड़े दर्दनाक वाकयात सुनने को मिलते हैं और देखने को भी मिलते हैं। हम देखते हैं कि गलती होती है छोटी सी, उसे सुधारा भी जा सकता है, लेकिन बड़ा भाई जनाब बहन को कत्ल कर देता है, बाप बेटी को कत्ल कर देता है, बीवी को कत्ल कर देता है, यानी खानदान के अपने ही अफराद एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। मैं हैरान होता हूं ये कैसे मुमकिन होता है। खुदा ने बड़ी अकीदत से ये रिश्ता बनाया है, खुदा ने औलाद नेमत के तौर पे बख्शी है, और जब हम उसे मारते या उसे कत्ल करते हैं तो गोया हम खुदा की नेमत को कत्ल करते हैं। जिसका खुदा को दुख होता है उसे सदमा होता है। इसलिए जनाबे वाला बड़े एहतियात की जरूरत है, बिलखुसूस उस वक्त में जब बेटी या बेटा खुदा न खास्ता किसी भी तरह से रास्ते से भटक जाए, तो वहां पर हमें बड़ी होशियारी से चलने की जरूरत है कि हम फिर से उसे राह रास्त पर ले आएं। हमारी जीत इसी में है कि हम बगैर तशद्दुद किए बड़े अच्छे तरीके से अपने रवैये से अपनी बेटी या बेटे को कायल करके सीधे रास्ते पे चलाना शुरू कर दें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं हादसात से बचाओ। प्रोग्राम हादसात से बचाव लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल कहार साहब जो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, और जो प्रोग्राम बाकायदगी से सुन रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं किचन सेफ्टी पर, यानी किचन में एहतियात बरतने पर जो अहमियत है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम चाहते हैं कि हम बात करें एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन के हवाले से, और जो घर में गैस भर जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहले तो ये है कि घर में गैस भर जाने की वजूहात क्या है। बाज़ गैस लीकेज हो सकती है, कहीं से पाइप लीक हो सकता है, बाज़ हमारा अपना पाँव लगने से गैस उतर जाता है जो सेफ नहीं ना हमने बनाया होता सिस्टम, और बाज़ चूल्हा चलता हुआ रह जाता है, कोई बच्चा जाके उसको रात को चलाने की कोशिश करता है, तो जिस वजह से गैस भर जाती है। अभी आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारी नेचुरल गैस है, मीथेन गैस जो है, इसकी स्मेल कोई नहीं होती। गवर्नमेंट लेवल पर इसमें बकायदा एक स्मेल शामिल की जाती है ताकि लोगों को पता लग जाए कि गैस लीक हो रही है। अच्छा, तो उसके बाद वो जो अगर आपको स्मेल आ रही है, अगर आप अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं या सोए हुए हैं और आपको पता लग गया है कि गैस भर गई है, क्योंकि ये मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में बताया था ना कि जो एलपीजी है ना वो नीचे जमीन के साथ पानी की तरह रहती है, और जो हमारी ये सुई गैस है, जो हमारी नेचुरल गैस है, ये फजा में उड़ती है, ऊपर उड़ती है। अगर आपको शक पड़ता है कि गैस भर गई है तो किसी भी सूरत लाइट भी नहीं जलानी है आपने, क्योंकि लाइट जलाते जब हम बटन दबाते हैं ना तो बाज़ क्योंकि वो गैस हर जगह फैली हुई है, वो बटन के अंदर भी गैस मौजूद है, वो चीजों के अंदर भी मौजूद है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अभी तक उसने आग नहीं पकड़ी। इसका मतलब है कि कोई ऐसा सोर्स, उसे इग्निशन सोर्स नहीं मिला। लिहाजा हमने देखना है कि अगर वो आग नहीं पकड़ी तो इसका मतलब है कि हमें फौरी तौर पर खिड़कियों को खोल दें ताकि ताज़ा हवा अंदर आए और वो जो गैस वहां से निकल जाए, क्योंकि गैस की एक खास मिकदार होगी तो वो ब्लास्ट होगी, एक खास मिकदार होगी तो उसको आग लगेगी। अगर गैस की मिकदार कम हो जाएगी तो आग नहीं लगेगी उसको। लिहाजा आपने ये करना है कि एग्जॉस्ट नहीं चलाना, खिड़कियां खोल देनी है, दरवाजे खोल देने हैं, और कोशिश करें कि तमाम लोग जो हैं वो वहां से निकल जाएं, क्योंकि इससे दम घुटने का भी प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा फौरी तौर पर अपने लोगों को वहां से बाहर निकाल लें, अपने साथियों को बाहर निकाल लें, फिर उसके बाद फौरी तौर पर ढूंढें कि वो गैस कहाँ से खारिज हो रही है। बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएं बल्कि बाहर से उसको बंद करने की कोशिश करें। गैस को बंद करने के लिए वो रेंच टाइप एक आला होता है, उसके साथ वो गैस बंद होती है पीछे से, तो इनको इख्तियात करें तो कोई इशू नहीं होता। दूसरा, आपने वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बात की है। किचन में काम करते वक्त बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर पर अगर एलपीजी जल रही है या हमारी मीथेन जो हमारी आम नेचुरल गैस है वो चल रही है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें पैदा होती हैं। दूसरी बात है कि गैस के साथ कोई ना कोई चीज हम जला रहे होते हैं, कोई हम खाना पका रहे होते हैं, हम उसके साथ कुछ और कर रहे होते हैं, दूध बॉयल कर रहे होते हैं, उनके बुखारात ऊपर उड़ रहे होते हैं, और बाज़ चीजों में साथ कार्बन उड़ रही होती है, जैसे कोई जलने वाली चीज है, कोई भून रहे हैं हम किसी चीज को, बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं, उससे जो धुआं पैदा हो रहा है उसमें वो गैस के अलावा, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा, उसमें कार्बन के ज़रात बहुत सारे शामिल हैं। लिहाजा आप जब देखें कि जो चीजें उड़ रही हैं वो सांस के जरिए हमारे अंदर भी जा रही हैं,
جب ہم آئل جلاتے ہیں، آئل استعمال کرتے ہیں، کسی چیز میں آئل ڈالتے ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں. وہ آئل ہمارے اندر جا کر ہمارے لنگس جو ہیں، جو آکسیجن جذب کرنے والے ہمارے لنگس میں جو ریسپریٹرز لگے ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ جم جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر دیکھیں کہ جو کچن میں کام کرنے والی خواتین ہیں، اکثر ان میں سانس کا پرابلم بھی ہوتا ہے، خون کی کمی کی پرابلمز بھی ان میں ہوتی ہیں، جسم ان کا کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جب سانس ان کے اندر جاتا ہے نا، تو وہ جا کر ہمارے سسٹم کو خراب کرتا ہے. جی صاحب صاحب، میں نے اس بات کو دیکھا، اور ایک دفعہ میرے اپنے گھر میں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ کوئلے جلائے تھے باربیکیو کے لیے، اور اس کے بعد کمرے کو گرم رکھنے کے لیے ان کوئلوں کو ہم نے اپنے کمرے میں رکھ لیا، اور ہمارے لیے بڑی پریشانی پیدا ہو گئی، کیونکہ میری بیگم صاحبہ جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے انہیں ایسے لگنے لگا کہ وہ بے ہوش ہو رہی ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئیں. جی بالکل، یہ بہت بڑا حادثہ ہے. اس کو ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ گھروں میں جو ہمارے کچن کے اندر جو ہم نے لگائے ہوتے ہیں نا پانی گرم کرنے کے لیے، جو وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اور یہ کوئلے کا اور ہیٹر لگا رہے ہوتے ہیں. جب آپ ہیٹر گیس والا لگاتے ہیں تو اس سے کاربن مونوکسائڈ ایک ایسی گیس پیدا ہو رہی ہے جس کی اسمیل نہیں ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ بہت بڑا زہر ہے ہمارے ساتھ جو جسم میں داخل ہو رہا ہے. وہ ہمارے اعصاب کو تباہ کر رہا ہے، اور وہ اس سے ایون بعض لوگوں کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. ان کا وہ ایسے لگتا ہے کہ انہیں تذابیت ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی. ایون جو آج کل ہمارے یہ جو اے سی سسٹم آیا، اس میں ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ بھی جب ہیٹ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہماری گیس جو بار بار اس سے گھوم کے جا رہی ہوتی ہے، اس سے بھی اثرات جو ہیں برے پڑتے ہیں. اور کوئلے سے تو خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کسی بھی جگہ جو آپ کی سونے کی جگہ ہے، خاص طور پر آپ کے کچن میں جہاں پہ برننگ ہو رہی ہے، جہاں آپ ایسے کام کریں، وہاں پہ آپ کے واش روم میں، یہاں پہ ہر جگہ پہ ایگزاسٹ سسٹم بہت ضروری ہونا چاہیے، اور وینٹیلیشن کا لازمی طور پر کوئی نہ کوئی اچھا بندوبست ہونا چاہیے. اور آخری بات کہ انڈسٹریز کے اندر آپ دیکھیں، انڈسٹریز میں آپ نے دیکھا اونچی اونچی چھتیں بنائی ہوتی ہیں جہاں برننگ ہو رہی ہوتی ہے نا، مطلب کوئی کیمیکلز کا کام ہو رہا ہے، ڈائنگ کی فیکٹریوں میں جائیں، فلاں فلاں اونچی اونچی چھتیں وہ اس لیے بنائی ہیں کہ جتنا یہ بھاپ ہے اڑ کے اوپر کو جاتی ہیں، تو ہمارے سانس میں وہ نہیں پرابلم کرتی. حال ہی میں جو مری میں واقع ہوا، اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ سردی سے زیادہ کچھ ہیٹنگ سسٹم کے سبب سے ہوا، تو اس پر تھوڑی سی روشنی جی ڈالیے. دونوں چیزیں تھی نا. ہیٹنگ سسٹم میں وہ یہ ہوا کہ جب برف پڑی ہے نا، تو اس کا جو نیچے ایگزاسٹ ہوتا ہے نا گیس سے جو نکلنے کا، جو ہمارے دھواں نکلنے والا سلنسر جسے کہتے ہیں، وہ بند ہونے کی وجہ سے وہ گیس اندر کو آ گئی. اچھا. اور دوسرا یہ حادثہ تھا کہ جن کی گاڑیاں بند تھیں، وہ نہیں سٹارٹ تھی، ان کے ساتھ بھی حادثہ ہوا. ان کے حادثے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ہی جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے تھے، گاڑیاں بند تھیں، وہ سلو پوائزن کی طرح وہ ان کو جو ہے سانس کو اٹھنے کا پرابلم ان کے ساتھ ہوا. اگر وہ وینٹیلیشن کا خیال رکھتے، تھوڑی سی اوپن رکھتے، یا تھوڑا سا دروازہ اوپن رکھتے، شیشہ نیچے کر لیتے تھوڑا سا، تو یہ حادثہ نہیں ہونا تھا. لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے جو وینٹیلیشن اور ایگزاسٹ سسٹم کے لیے. جی بہت بہت شکریہ. آج آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں ایگزاسٹ اور وینٹیلیشن کی اہمیت پر ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کی، اور یقیناً سننے والوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہوگا. سو بہت شکریہ. سنا سلسلہ حادثات سے بچاؤ جناب. امید ہے سبھی کو پسند آیا. یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، جہاں پر والدین کو چاہیے، بڑے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کے لیے اس طرح سے معافی کا جذبہ رکھیں، تو وہاں پر چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اور بیٹے بیٹیوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہمیشہ والدین کی رائے سے کام کریں. بالخصوص جب رشتے ناتے باندھنے ہیں، جب اپنے لیے جیون ساتھی کا چناؤ کرنا ہے. یہ زمانہ ایسا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی شخص آپ کو پسند بھی آ جاتا ہے تو آپ اپنے والدین سے لازمی رجوع کریں. اپنا رشتہ ناتا ضرور طے کریں، لیکن اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ. اسی میں آپ کی برکت ہوگی، اسی میں آپ کی سرفرازی بھی ہے، اور اسی میں خدا بھی راضی ہے. اور جب خدا راضی ہو جائے گا تو پھر آپ کی زندگی کمال ہو جائے گی. تو جناب آئیے، ابھی اختتام کا وقت ہے، ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق سبھی کو بڑی برکت عطا فرما، خاص طور پہ ہمارے لسنرز کو. اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری جاتی رہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو اچھا روزگار مل جائے. مہنگائی کا دور ہے. خدا قادر مطلق میں دعا کرتا ہوں کہ سبھی کے گھروں کے چولہے ہمیشہ جلتے رہیں اور ان کے کام کاج پر ہمیشہ تیری برکت رہے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.